हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस टॉपिक को आगे लेके जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन को, एंड फ्रॉम हियर वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वही है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक ग्राफ का छोटा सा पोर्शन बाकी यूनिफॉर्म मोशन का वो डिस्कस कर लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start today's class. Now I am going to discuss the position time graph for uniform motion. Position time graph, वहाँ से हम लोग वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करेंगे कैसे निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान है। पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा है। नाउ वी विल स्टडी पोजीशन टाइम ग्राफ। सो पोजीशन टाइम ग्राफ, आई विल ड्रॉ अ टू डिमेंशनल ग्राफ एट फर्स्ट. दिस इज द y axis, this is the x-axis and the origin. So along the y-axis I will consider the position को हम लोग x मान लेते हैं. It is increasing along the y-axis, and time t which is increasing along the x-axis. So if I consider an object which has started from x0, यहाँ पे let us consider x0. Okay, this is x0. Let us consider this x0 से ट्रैवल करना शुरू किया. So if it is uniform motion then it will travel equal distances in equal intervals of time. मतलब ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप चेंज नहीं करेगा, स्लोप वैरी नहीं करेगा. So if I consider it has started from any point, now let me consider this origin. Okay, this is origin and from here it has started its journey. x0 यहाँ से उसने शुरू किया ट्रैवल करना. तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ पोजीशन को कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा. ग्राफ आपका बन जाएगा इस तरह से. मीन्स द स्लोप इज कांस्टेंट बिटवीन एक्स एंड वाई. नाउ इफ आई कंसिडर 2 पॉइंट्स, ओके, इफ आई कंसिडर नाउ 2 पॉइंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड लेट अस join this point also. So we have got a right angle triangle over here. तो यहाँ पे जो right angle triangle हम लोग को मिला है उसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे. Let us mark that as A B C. कुछ इस तरह से हम लोग मार्क कर लेते हैं right angle triangle को, और इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं. Okay. So this point can also be considered as theta. This point is also theta. Okay. So this is the right angle triangle. I am considering triangle ABC. Not this triangle ABC. I'm considering this triangle, this above triangle ABC, not this triangle ABC. So ABC triangle, I can consider that, I can see that it is changing its position. Let us consider that in this straight line this position is x and this is x dash, this is t and this is t dash. Okay, this is t and t dash, and this is x and this is x dash. Okay, from here I can say that the slope of this graph, that is the velocity, will be x dash minus x by t dash minus t. I can say this displacement change in position with respect to the time, that is the velocity. We will get the velocity from here. So I can write that v into t dash minus t is equals to x dash minus x. I can write from here, from this equation I can write this value. From here I can say that x dash, if you solve this equation you will get the value x dash equals to x plus v into t dash minus t. So this will be our equation from here, and I can find out the velocity from here. So I can say that the slope of this graph, that is tan theta, will be equal to BC by AC perpendicular by base. So I can say BC by AC is equals to, what is BC? X dash minus x. What is AC? T dash minus t. So I can say that this will be the velocity. This will give us the velocity. So I think we can find out some equations for uniform motion. अगर आपका ये ग्राफ क्लियर हो गया हो, ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यूनिफॉर्म मोशन के लिए.
तो मैं इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख दूंगा आपको इस बोर्ड के ऊपर। सो नाउ आई हैव कंसिडर्ड 3 ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स हम लोगों ने डिस्कस किए। द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, देन वी डिस्कस्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इन तीनों ग्राफ्स को डिस्कस करने के बाद हम लोगों को 3 इक्वेशंस मिले हैं ग्राफ से। चलिए उनको नोट डाउन कर लेते हैं। दीज आर द ग्राफ्स, these are the equations for uniform motion. So for uniform motion we can write equations. We have found out 3 equations for uniform motion. चलिए उनको लिख लेते हैं। क्या है वो equations? So the first equation is velocity is constant, v is equal to constant. This is the first equation. Second equation, what is the second equation? Second equation is x equals to x0 plus vt. From the position time graph I can write this. And third equation that we found out just now is equals to x is equals to, I think this will be x dash, the final position x dash equals to x plus v into velocity into difference in the time, that is time interval. Final time minus initial time, that is the time interval. Or I can write this down as x dash equals to x plus v into delta t. What is delta t? Delta t is the time interval. I can write down. So these are the 3 equations for uniform motion. I think आपका ये concept clear हो गया होगा। अगर आपको ये equations clear हो गए हैं, so now we will start the important topic of relative velocity. चलिए relative velocity को डिस्कस कर लेते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद आपका ये चैप्टर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। Now I will discuss about relative velocity. Relative velocity का concept काफी important है। Let us discuss about relative velocity. एक केस हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, एक सिचुएशन, आपका कंसेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा। सपोज आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपने ट्रेन में तो ट्रैवल किया ही होगा। So you can notice that when you are traveling in any train, suppose this is a train and you are sitting in this train. दूसरा एक ट्रेन नेक्स्ट ट्रैक पे जाता है, मतलब इमीडिएट जो ट्रैक है, बगल में जो ट्रैक है, इमीडिएट ट्रैक, one more train is traveling, okay, another train is traveling maybe in the same direction or in the opposite direction, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो जब दोनों ऑब्जेक्ट्स पैरेलली मूव कर रहे हैं, then parallelly or anti-parallelly if two objects are moving, or they cannot be in parallel conditions also, if two objects are moving simultaneously, then the concept of relative velocity arises. चलिए उसको डायग्राम से समझते हैं। Suppose you are traveling in any train, ये ट्रेन है, ट्रेन A, ओके, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। Another train is traveling in the same direction, this is train B traveling in the same direction. So relative velocity of A, relative I can say that relative motion, first we have to consider about relative motion, then I can say about relative velocity. तो relative velocity of body A, relative velocity जो है किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में होता है, मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट होगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, with respect to b होगा, okay, respect to b होगा when both are in motion, जब दोनों बॉडीज मोशन में है तभी हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट। इफ वन इज रेस्ट एंड वन इज इन मोशन देन देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव करना पड़ेगा व्हेन बोथ आर इन मोशन। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, is the rate at which the body A changes its position, is the rate at which A changes
अब ये ए और बी जो मैंने ट्रेन का एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो सकता है, बॉडी हो सकता है, मैन हो सकता है, दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, ए एंड बी, और ये चेंजेस इट्स पोजीशन changes its position with respect to b, this is the definition for your relative velocity. You can write this down definition, you can write this definition in your copies. तो इसको लिखने के बाद मैं इस बोर्ड को रब कर देता हूँ। ये डेफिनेशन अगर आपने समझ लिया है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी फॉर एनी two bodies. Let us consider those two bodies as A and B. और two bodies ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। डायरेक्शन मैंने अभी आपको नहीं बताया, डायरेक्शन का केस बाद में कंसिडर करेंगे। सो इफ टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन two directions, if two bodies are traveling in a direction, I will tell you the direction in the case after we derive the equation, then we will consider the direction, okay. Suppose VA and VB are the velocities of the two bodies. Body A का velocity है VA and body B का velocity है VB. From here I can say that displacement of object B in time t minus displacement of object A in time t. So displacement of B in time t minus displacement of A in time t will be equal to the velocity, will be equal to Vb minus Va into Vt into t. Displacement जो हो रहा है Vb minus Va whole into t, that is the time. From here I can write down relative displacement of B with respect to A, or I can write relative displacement of B with respect to A, okay, in time t will be equal to Vb minus Va into t, Vb minus Va into t. From here I can write down that t will not be considered in this equation. Why? क्योंकि मैंने वेलोसिटी का इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा, मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो है बाय टाइम, देन आई कैन से दैट दिस इज द वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ इसलिए t को हटा दिया, t को मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे, दिस इज द वेलोसिटी। नाउ आई कैन से दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू A, उसको मैं लिख देता हूँ VBA, दैट विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VA। आई थिंक आपका इक्वेशन यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। अगर आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है, देन आई कैन राइट दिस डाउन ऑल्सो एज VB प्लस माइनस VA। अगर VA का डायरेक्शन VB के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट में, तब मैं माइनस भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। सो दिस इज द इक्वेशन VB minus VA means the velocity of object B with respect to A is VB minus VA, that is the velocity of object B minus the velocity of object A. अगर मैं यहाँ पे VA भी लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, VA minus VB हो जाएगा इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है, चलिए मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं पैरेलल एंटी पैरेलल केसेस कंसिडर करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी में। उसके बाद ग्राफ्स है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट आई कैन कंसिडर ग्राफ्स। एंटी पैरेलल होगा तो आप माइनस साइन कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू ग्राफ्स। सो द ग्राफ्स आर लाइक दिस। फर्स्ट लेट अस कंसिडर 3 केसेस, 3 केसेस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो है यहाँ पे आपके सिलेबस में भी। जब ऑब्जेक्ट ए और बी का वेलोसिटी सेम है, सेम वेलोसिटी, when object A and B are moving with same velocity, then I can say the relative velocity, that is VAB, relative velocity of A with respect to B will be 0, क्योंकि velocity तो सेम है। VB VA is equal to VBA, इसलिए 0 बन जाएगा। Another case if VB is greater than VA, VB is greater than VA, then I can say that
if VB is greater than VA, then I can say that VB minus VA, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड VA माइनस VB ये बन जाएगा नेगेटिव। ऑब्वियसली थर्ड केस कंसिडर कर लेते हैं, VA is greater than VB, VA is greater than VB, then I can say that उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर केस क्या बन जाएगा, क्योंकि VA ग्रेटर है VB से, सो दिस विल बी पॉजिटिव, एंड VB माइनस VA बन जाएगा नेगेटिव, क्योंकि A V से बड़ा है। दैट इज व्हाई आई कैन से दैट दीज आर द थ्री कंडीशंस। अगर ये कंडीशंस आपने नोट कर लिए हैं, चलिए नाउ वी विल मूव ऑन टू द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। तो इस चैप्टर में आपका यहीं तक था। आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। ये था आपका रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, आप उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहले मैं सिलेबस खत्म करा देता हूँ आपका। फर्स्ट टाइम फोकसिंग ऑन द सिलेबस ऑफ 11th and 12th फिजिक्स। आफ्टर आई कंप्लीट द सिलेबस वंस, देन आई विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, और पूरे डिटेल में प्रॉब्लम्स करेंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जेईई नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से अप्रोच किया जाता है जेईई नीट के क्वेश्चंस को, वो सब मैं आपको बताऊंगा आफ्टर आई फिनिश द सिलेबस। इसीलिए नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट्स। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अ बेस। पहले आपको एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा कंसेप्ट्स के ऊपर। एक बार आपका बेस क्लियर हो जाए, आफ्टर यू हैव अ गुड होल्ड ओवर द कंसेप्ट्स, देन यू कैन इजीली क्रैक द प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई एंड नीट। काफ़ी आसान बन जाएगा अगर आपके कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सो ऑलवेज इन फिजिक्स फोकस ऑन कंसेप्ट्स एंड डायग्राम्स। सो दिस वीडियो वाज टिल हियर। आपको अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव अ थम्स अप and also hit the subscribe button, press the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video, and also hit the share button. Share this video as many students as possible so that all the students can be benefited from these videos. मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि काफ़ी लोग इस वीडियो से हेल्प ले सके अपने एग्जाम्स के लिए। So till I upload the next video, bye students.